मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र बजा लाता हूँ। उसके बाद ये मेस एकेडमी IIT नीट एकेडमी का बेहद ममनून और मशकूर हूँ। ऐसे तो शहर में बहुत सारे इदारे हैं जहाँ बच्चों को ख़र्च करके जो तालीम दिलाई जाती, उसके बावजूद भी बच्चों पे कोई मेहनत नहीं की जाती। बच्चे हमारे जो है अपना फ्यूचर बर्बाद कर लेते। इस एकेडमी में ना सिर्फ बच्चों का फ्यूचर बनता है बल्कि उनकी दीनी तालीम तरबियत भी होती है। इसके लिए जो है MS एकेडमी काबिल मुबारकबाद है। For more details, please visit our website. हुस्नाबाद हल्के के चेगरू मंडल के MPP और MPTCs पर मुश्तमिल एक वफ्द ने वजीर पूनम प्रभाकर से मुलाकात की। तफसीलात के मुताबिक चेगरू मंडल की MPP कोत्ता विनीता श्रीनिवास रेड्डी और मुख्तलिफ देहातों के MPTCs पर मुश्तमिल एक वफ्द ने डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट में वजीर पूनम प्रभाकर से मुलाकात की। दरियासना उस वफ्द ने पूनम प्रभाकर को 3 जुलाई को मुनक़िद होने वाले इजलास में शिरकत के लिए मदऊ भी किया। भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर KTR ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को BRS से कांग्रेस में शामिल होने वाले 6 अरकान असम्बली को दोबारा इलेक्शन लड़वाने का चैलेंज किया है। KTR ने जगतियाल जिला मरकज में BRS पार्टी इजलास को मुखातिब करते हुए कहा कि कांग्रेस में शामिल होने वाले MLAs का पार्टी में कोई मुस्तकबिल नहीं है। उन्होंने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर खुदकुशी कर ली है। KTR ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को 6 अरकान असम्बली को इस्तीफा दिलवाने और दोबारा इंतखाबात लड़वाने का चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि वो के कविता के हमरा जगतियाल में गली गली घूमकर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। KTR ने जगतियाल के MLA डॉक्टर संजय को शिकस्त देने के मकसद से काम करने पर जोर दिया है। సంజయ్ గారు ఉన్నారు. నేను మీ అందరినీ కోరేది ఒకటే, ఎవ్వరు కూడా భయపడవలసిన అవసరం కానీ బాధపడవలసిన అవసరం కానీ లేదు. ఒక్క 2 నెలలనే మీకే అర్థమవుతుంది. ఒక్కటంటే ఒక్క MPTC టికెట్ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఈ దొంగకు జీవన్ రెడ్డి ఇయ్యనియాడు. ఒక్క MPTC టికెట్ కూడా ఒక్క బీఫామ్ కూడా ఇయ్యనియాడు. ఈ బల కొడతాడు. నాకు తెలుసు జీవన్ రెడ్డి సంగతి. ఈయన బతకని కూడా బతకనియాడు. ఈయన కేవలం ఆ క్రషర్ కాడ కూర్చొని కంకరేరుకుంటా ఉండాల్సిందే తప్ప ఈయన తన అయ్యేది లేదు పోయేది లేదు. వాళ్ళ వియంకుని తీసుకొచ్చి కాంట్రాక్ట్లు చేసుకోవాలి, పైసలు ఏరుకోవాలి, పైసలు లెక్క పెట్టుకోవాలి, క్రషర్ కాడ పోయి కంకర చూసుకొని సంతోషపడు తప్ప అయ్యేది లేదు పోయేది లేదు. కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఈయనకు భవిష్యత్తు కూడా లేదు. పెద్దలు ఎప్పుడొకటి చెప్తారు, రాజకీయాల్లో హత్యలు ఉండవు, ఆత్మహత్యలే ఉంటాయి. మీ జగిత్యాల ఎమ్మెల్యే ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు, బాయిల దుంకిండు బండ కట్టుకొని. ఆయన జావని మనం ధైర్యంగా నిలబడదాం. లోకల్ బాడీ ఎన్నికల్లో మీ కండగా మేమందరం ఉంటాం. నేను జగిత్యాలలో తప్పకుండా గల్లీ గల్లీ తిరుగుతా. కవితక్క కూడా వస్తది, తప్పకుండా తిరుగుతుంది. पुलिस ने बेरोजगारों की हिमायत के लिए भूख हड़ताल कर रहे मोतीलाल के साथ इजहार यकजहती के लिए गांधी अस्पताल पहुंचने वाले BRS MLA पल्ला राजेश्वर रेड्डी और राकेश रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया। मोतीलाल नायक बेरोजगारी के मसले को हल करने का मुतालबा करते हुए भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जंगामा के BRS MLA पल्ला राजेश्वर रेड्डी और राकेश रेड्डी उनके साथ और दीगर बेरोजगारों के साथ इजहार यकजहती के लिए आज गांधी अस्पताल पहुंचे। ताहम वहां मौजूद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। Oleh,
చెప్పేసి ఇంతవరకు దాని మీద ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోలే. ఇవాళ 1:50 ఇంతకుముందు గ్రూప్ 1లో ఇచ్చేవాళ్ళు 1:50 కాదు 1:100 చేయాలని చెప్పేసి నిరుద్యోగులందరూ కోరిండ్రు. గత ప్రభుత్వం చేయలేకపోతే మేము చేస్తామని చెప్పి కదా, అందుకే నిరుద్యోగులందరూ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓట్లేశారు కదా. 1:50 నుంచి 1:100 చేస్తే నీకు వచ్చే నష్టం ఏంటి? దరిదాపుగా 4 నుండి 5 లక్షల మంది గ్రూప్ 1 రాస్తున్నప్పుడు ఉన్న పోస్టులకు 1:50 నుండి 1:100 అనేక రాష్ట్రాల్లో ఉంది కాబట్టి, యూపీఎస్సీలో కూడా ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ న్యాయంగా వీళ్ళు కోరిండ్రు, దాన్ని చేయాలని చెప్పేసి కోరుతున్నారు. ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వెంటనే 1:50 నుంచి 1:100 పెంచాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా గ్రూప్ 2 కానీ గ్రూప్ 3 కానీ ఏదైతే ఇంతకుముందు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కానీ నిరుద్యోగులు గారు చెప్పిందో, కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ చెప్పిందో, వాళ్ళు చెప్పిన దాని ప్రకారం ఉన్న సీట్లు అన్నిటి కూడా పెంచుతామని చెప్పిండ్రు. పెంచడానికి ఏమి ఇబ్బంది? కాబట్టి ఖచ్చితంగా గ్రూప్ 2లో గ్రూప్ 3లో పెంచాలి. అదేవిధంగా మెగా డిఎస్సీ ఏదైతే ఉన్నదో शहर हैदराबाद में एनएसयूआई और तलबा की बड़ी तादाद ने नीट पेपर लीक मामले पर चलो राजभवन प्रोग्राम मुनक्किद किया। तलबा तंजीमें एनएसयूआई व दीगर नीट इम्तिहान की मनसूखी का मुतालबा करते हुए मुल्क भर में एहतजाज जारी रखे हुए हैं। शहर हैदराबाद में पीर को एनएसयूआई के लीडर्स, कारकुनान और तलबा की बड़ी तादाद ने नीट पेपर लीक मामले पर राजभवन की तरफ मार्च किया। ताहम पुलिस ने फौरन हरकत में आते हुए मुजाहिरीन को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने 3 फौजदारी खवानीन को रोल्ड एक्ट करार देते हुए कहा कि इससे कौम के लोगों की शहरी आज़ादी खत्म हो जाएगी। मरकजी हुकूमत के नाफिज किए गए नए फौजदारी खवानीन की शदीद मुखालिफत की जा रही है। AIMIM सरबरा व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी ने इन खवानीन को रोल्ड एक्ट करार देते हुए कहा है कि इससे कौम के लोगों की शहरी आज़ादी खत्म हो जाएगी। उनका कहना था कि इन खवानीन के निफाज के बाद हुकूमत किसी को भी दहशतगर्द करार दे सकती है और ये UAPA से भी ज्यादा खतरनाक है और इन खवानीन का गलत इस्तेमाल कबायलियों, दलितों, मुसलमानों और हुक्मरान पार्टी से इख्तिलाफ रखने वाले लोगों के साथ किया जाएगा। देखिए, ये रोलेट एक्ट है एक मानों में, और दूसरा ये है कि इससे जो भारत की जनता की सिविल लिबर्टीज हैं वो खत्म होकर रह जाएंगी। तीसरा ये है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा सेडेशन कानून को निकालेंगे, मगर उन्होंने लफ्ज सेडेशन इस्तेमाल नहीं किया और एक मानों में सेडेशन का कानून बना दिया, लव जिहाद का कानून बना दिया। तीसरा ये है कि 90 दिन की पुलिस कस्टडी मिल सकती है और उस वक्त तक बेल नहीं मिलेगा। पांचवी अहम बात यह है कि ये सरकार किसी को भी टेररिस्ट घोषित कर सकती है। माने UAPA से खतरनाक ये कानून आज बन चुका है। UAPA में अगर किसी का पुलिस कस्टडी बढ़ाना है तो DSP रैंक का एक ऑफिसर कोर्ट में पिटीशन देता है कि हम क्यों उनका कस्टडी लेना चाह रहे हैं। यहां पर उसकी जरूरत भी नहीं है। तो इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिससे सबसे ज्यादा इसका गलत इस्तेमाल होगा आदिवासियों पर, दलितों पर, मुसलमानों पर और जो लोग रूलिंग पार्टी से डिसेंट करते हैं। और उसमें एक प्रोविजन ये भी है कि किसी को भी पुलिस जो है 48 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए उठाकर लेकर जाएगी। क्या बात है, यानी कहाँ रुकेगा फिर ये? इसीलिए
सरकार कह रही है कि अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे तो ये तो क्या सुधार किया गया? आपने क्या सुधार किया? आपने तो अंग्रेजों का जो कानून था उससे बदतर कानून आपने बना दिया। नहीं, अरे फॉरेंसिक का इस्तेमाल तो पहले भी हो रहा था ना, नहीं हो रहा था क्या? ये क्या बात है? क्या ये मोदी सरकार समझती है कि फॉरेंसिक का इस्तेमाल नहीं हो रहा था? हम आइए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन दिखाते हैं आपको फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट हमारे पास कितना बड़ा है, डीएनए इंस्टीट्यूट कितना बड़ा है। क्या बकवास बात कर रहे हैं? मर्सी पिटीशन का बोल रहे हैं, टाइम आपने कम कर दिया, थर्ड पार्टी मर्सी पिटीशन नहीं देंगे। सबसे ज्यादा जो क्या बोलना चाहिए, फांसी के सजायाफ्ता मुजरिम है वो तो दलित और मुसलमान है। आप जाकर उसका एम्पिरिकल डेटा है। तो ये कानून रूलेट एक्ट है। ये मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने वजीर आला रेवंत रेड्डी से दरख्वास्त की है कि वो ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की जानिब से मैसूर से हैदराबाद आने वाले खानदान को हरास न करने के वाक़े का सख्त नोट लें और इस सिलसिले में जरूरी इक़दाम करें। तफसीलात के मुताबिक मैसूर के बनवर का रहने वाला एक खानदान चार मीनार के करीब खरीदारी कर रहा था कि 3 या 4 कांस्टेबल्स ने उसी खानदान के एक फर्द अमजद खान को पकड़ लिया, बदतमीजी की और ट्रैफिक पुलिस स्टेशन चार मीनार ले गए। शीट टीम्स का कहना था कि वो छेड़छाड़ कर रहे थे, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है, जबकि अफराद खानदान का कहना है कि वो खरीदारी में मसरूफ थे। एमबीटी तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने एक्स पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, हैदराबाद सिटी पुलिस, डीसीपी साउथ जोन व दीगर मुताल्लिका हुकाम को टैग किया है और हैदराबाद आने वाले खानदान के एक शख्स को गिरफ्तार करने, उसे जद्दोकोब करने और उसके फोन को छीन लेने के वाक़े का जिक्र किया है। उन्होंने मुतालबा किया है कि इस वाक़े का अज़ खुद नोट लिया जाए, अमजद खान का फोन व दीगर सामान लौटाने की हिदायत भी जारी की जाए। मरकजी हुकूमत के 1 जुलाई से नाफिज किए गए न्याय भारतीय संहिता कानून के तहत हैदराबाद में पहला मुकदमा दर्ज किया गया। आईपीसी के बदले नाफिजुल अमल फौजदारी कानून न्याय भारतीय संहिता के तहत हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट के चार मीनार पुलिस स्टेशन में पहला मुकदमा दर्ज किया गया है। डीजीपी तेलंगाना रवि गुप्ता ने एक्स पर नए कानून के तहत मुकदमा दर्ज किए जाने की इतला देते हुए कहा कि चार मीनार पुलिस ने बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मुकदमा 281 बीएनएस और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दर्ज करते हुए उनकी मोटर गाड़ियां जब्त कर ली गई हैं। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन कौंसल मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी और याकुतपुरा रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने अलावा बीबी दबिरपुरा में आरजी शेड की तनसीब का मुआयना किया। अलावा बीबी दबिरपुरा में अज़ादारों और ज़ायरीन को बारिश से महफूज रखने के लिए आरजी शेड नस्ब किए गए हैं। एमएलसी मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी और एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने आरजी शेड्स की तनसीब का मुआयना किया। इस मौके पर कॉरपोरेटर अलमदार वाला जाही व दीगर मौजूद थे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे एमआरआई, सीटी स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के इस्तफादा कुनिंदगान में चेक्स तकसीम किए।
बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की दाद पर याकुतपुरा एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने बंडलागुड़ा मंडल ऑफिस में कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना व दीगर के हमरा शादी मुबारक और कल्याणा लक्ष्मी के 38 चेक्स तकसीम किए गए चेक्स की मालियत 38,04,408 रुपये रही। इस मौके पर इस्तफादा कुनिंदगान पार्टी के लीडर्स व दीगर मौजूद थे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने मसखती ग्राउंड मादनापेट में ओवैसी पार्क का इफ्तिताह अंजाम दिया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर याकुतपुरा असम्बली हल्के के कुरमागोड़ा डिवीजन में 25 लाख रुपए की लागत से ओवैसी पार्क का इफ्तिताह अमल में लाया गया। एमएलए याकुतपुरा जाफर हुसैन मेराज, कॉरपोरेटर शफाअत अली वासिउद्दीन, इब्तिदाई मजलिस के जिम्मेदारान और मुकामी लोगों के मौजूदगी में पार्क का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। पार्क में बच्चों को खेलने और बैठने के लिए जगह दस्तयाब है। झूले भी नस्ब किए गए हैं। जाफर हुसैन मेराज ने आवाम से इस पार्क में लगाए गए ओपन जिम से इस्तेफादा हासिल करने और अपने बच्चों को पार्क में लाकर खेल कूद का मौका देने का मशवरा दिया है। रियासत महाराष्ट्र के पुणे में भूशी डैम के आबशार में पानी के तेज बहाव के सबब एक खानदान के 5 अफराद बह गए। तफसीलात के मुताबिक पुणे के सैयदनगर से ताल्लुक रखने वाले अंसारी खानदान के कुछ अफराद भूशी डैम गए थे, जिनमें से 5 अफराद पानी में बह गए। मुकामी लोगों और सयाहों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन उन तक पहुंच ही नहीं सके। इस वाक़े के वीडियोस भी मंजर आम पर आए हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि खातून और कमसिन बच्चे पानी में फंसे हुए हैं और मदद के मुंतज़िर हैं, लेकिन पानी का बहाव तेज होने की वजह से उन तक पहुंचना मुमकिन नहीं था। इस दौरान जिला एसपी देशमुख ने बताया है कि पानी में बह जाने वाले 3 अफराद शाइस्ता अंसारी, उमैमा अंसारी और उमेरा अंसारी की नाशें बरामद कर ली गई हैं, जबकि 4 साला अदनान अंसारी और 9 साला मारिया सईद अभी तक लापता हैं। उनकी तलाश के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। गोताखोरों और रेस्क्यू टीमों ने मुसलसिल तलाशी मुहिम जारी रखी है। शहर हैदराबाद में PVNR एक्सप्रेस वे पर एक कार उलट जाने से ताजिर की मौके पर ही मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक मैलारदेवपल्ली के रहने वाले 27 साला गणेश गौड़ मेहदीपट्टनम से आराम कर जा रहे थे कि राजेंद्र नगर के करीब PVNR एक्सप्रेस वे पर उनकी महिंद्रा थार उलट गई और वो मौके पर ही दम तोड़ गए। पुलिस का शुबा है कि हादसा तेज रफ्तारी के बाद पेश आया। मुकामी हादसे पर पहुंचे पुलिस अहदेदारों ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल करवाया और एक मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश का आगाज किया है। अत्तापुर पुलिस हुदूद में एक शख्स पर कातिलाना हमला किया गया, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया। ज़राए ने बताया कि अत्तापुर पुलिस हुदूद के पिलर नंबर 240 के करीब सलमान नामी शख्स पर एक शख्स ने चाकुओं से हमला किया, जिसके सबब वो जख्मी हो गए। हमले के बाद मज़कूरा शख्स वहां से फरार हो गया। बताया गया है कि दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ था, जिसके बाद मफरूर शख्स ने सलमान पर चाकू से वार किए। जख्मी सलमान को इलाज के लिए खानगी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस सिलसिले में मजीद तफसीलात का इंतजार है। उन्हें आया चिपका मेरे को, कौन जो मारा सो वाला, उन्हें चिपका तो क्या हुआ रे मुझे ऐसा ढकल दिया मैंने, वो ढकलन लगली नहीं। उन्हें आया एक फाइट मारा, इन्हें एक फाइट मारा, उन्हें चले गया घर को। कौन लड़ लिया? दोनों
उन्हें दोनों लड़ लिए। दोनों कौन? तो जो मारा सवाल है एक, ये इन्हें एक। क्या नाम है सलमान, दोनों का? सलमान मुझे बच्चा है, उन्हें एक, ये नबी भाई एक, दोनों लड़ लिए। और लड़ने के बाद में उन्हें चलेगा समझे हम, उन्हें घर में गया भी, खर्चा लाया भी, पत्थर से आईना फोड़ दिया, आईना फोड़ के चाकू से मारना शुरू कर दिया। मैं बोला क्या हुआ रे, क्या हुआ? बोले मार के भाग भी गया उन्हें। वो उतरे थे के भागा गाड़ी में से, गाड़ी में स्टूडेंट बैठा हुआ था, उतरे थे के भागा छोड़ दे। क्या कर सकते उसको? कैसे मारा ना? चाकू से मारा, चाकू गाड़ी में से पड़ी हुई, मेरी गाड़ी में से चाकू पड़ी हुई। पुरानी दुश्मनी कुछ है क्या? उन्हें मालूम पहचानते क्या आप उसको? नहीं पहचानता नहीं, देखा नहीं अपन कभी जिंदगी में उसको। दोस्ताना है, मोहब्बत खुलूस है, बैठा उठा सिगरेट पीने कैसे रुका? रुकने में ये हो जाता तो उसको अपने क्या मालूम था? मैं तो घर को चलाता था सीधा सीधा, क्या घर का सिगरेट नहीं मिलता मेरे को। दोस्ताना है बोल के रुका वहाँ, सिगरेट क्या से ये केस होगा? क्या करते? कंप्लेंट कुछ दिए? कंप्लेंट दिए पुलिस से? अपन नहीं देगा मैंने कुछ भी। हॉस्पिटल में डॉक्टर क्या बोलते? वो क्या है, वो डॉक्टर से बात ही नहीं करा, डॉक्टर कुछ डॉक्टर से भी बात नहीं हुई कुछ भी। क्या काम करते हो नबी? नबी भी ड्राइवर है, हाँ? गाड़ी चलाता, बड़ी गाड़ी, बस जल्दी चलाता हूँ। किधर रहते हैं? नहीं रहता लाल दाबे में। क्या उम्र क्या रहता? उम्र भाई क्या मालूम उसकी उम्र होंगी 60 साल होंगी, 35 साल का, 30 से 35 साल का है उन्हें। तो मार के गया सलमान नाम है, काला सर का है, दुबला। हज की सादत हासिल करने के बाद आजमीन की हिंदुस्तान को वापसी का सिलसिला जारी है। 14 परवाजों के जरिए 14,447 आजमीन हिंदुस्तान पहुंचे। हज कमेटी ऑफ इंडिया और हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स के जेर एहतमाम हज का फरीजा अदा करने के बाद आजमीन की वतन वापसी हो रही है और अब तक 92 परवाजों के जरिए 29,428 हुज्जाज हिंदुस्तान पहुंच गए हैं। मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा की सिमत आजमीन की रवानगी भी जारी है। मक्का मुकर्रमा में 90,029 और मदीना मुनव्वरा में 20,479 हुज्जाज मौजूद हैं। हुज्जाज ग्राम की इमारतों से उनका सामान इकट्ठा कर एयरपोर्ट मुंतकिल किया जा रहा है ताकि उन्हें किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। मक्का मुकर्रमा का दर्जे हरारत 30 डिग्री सेल्सियस तब 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र बजा लाता हूँ। उसके बाद ये मेस एकेडमी IIT नीट एकेडमी का बेहद ममनून और मशकूर हूँ। ऐसे तो शहर में बहुत सारे इदारे हैं जहाँ बच्चों को ख़र्च करके जो तालीम दिलाई जाती, उसके बावजूद भी बच्चों पे कोई मेहनत नहीं की जाती। बच्चे हमारे जो है अपना फ्यूचर बर्बाद कर लेते। इस एकेडमी में ना सिर्फ बच्चों का फ्यूचर बनता है बल्कि उनकी दीनी तालीम तरबियत भी होती है। इसके लिए जो है MS एकेडमी काबिल मुबारकबाद है। For more details, please visit our website.